Hello students, how are you all? I hope you are doing well. Today we will start a new chapter. The name of chapter is probability. So in this chapter we will discuss that for examples we have taken example that death is a certainty. Every living creature which is born is bound to die. It is certain that the sun will rise in the east. It is impossible that you would grow taller than a giraffe. It is also impossible that you will see a living dinosaur in any zoo. So besides such as events as above whose happening is either certain or impossible, there are events in our daily life which are possible or likely but uncertain. We cannot be sure whether they would happen or not. It is possible or likely that Mr. Madan Lal will win the election, but we cannot be sure. It is quite possible or every likely that you would be selected for the school team, but it is not certain. When you buy a lottery ticket, it is possible that you may win, but since the lakhs of people would have bought the tickets, the chances of your winnings are very less. We may say that there is a very poor chance of your winning, or to put it in the other words, it is very unlikely that you will win. If you toss a coin, you are not sure which one, the head or the tail, will show up. The chances of it being either head or tail are even or equal. We say that it is equally likely that it will be either head or tail. चलो हम स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी पे आ जाते हैं टॉपिक पे. नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट टू अकर. Tell us about the chance or possibility of occurrence of that event. Consider the following experiments. बच्चों प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की होने के चांसेस कितने हैं. ठीक है, कि वो चीज़ होगी, कितने परसेंट उसके चांसेस है, इम्पॉसिबल है या पॉसिबल है, हाफ चांसेस है, फुल चांसेस है, वो हम बात करेंगे इस टॉपिक में. ठीक है. फर्स्ट है टॉसिंग अ कॉइन. बच्चों जो हमने टॉस किया है कॉइन, सपोज वी टॉस ए कॉइन एंड लेट इट फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड, its upper face will show either head or tail. Thus tossing a coin, there are two possibilities, head and tail. Tossing of two coins together, so suppose a toss two coins simultaneously, then all the possible outcome क्या आएंगे बच्चों, या तो दोनों हेड आएंगे, या हेड टेल, या टेल हेड, या टेल टेल. ठीक है. नेक्स्ट हम आगे चलते हैं. थर्ड पे टॉसिंग अ डाई. सपोज वी थ्रो a die and let it fall on the ground. Its upper face will show one of the number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thus all possible outcomes are 1, 2, 3, 4, 5, 6. Drawing card from a well shuffled pack of 52 cards. We draw a card from the well shuffled of 52 cards of possible outcomes. अब आपको पता है ये स्पेड का सिंबल है बच्चों, ये आपका क्लब है, और ये हार्ट है, और ये आपका डायमंड है. तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Probability of occurrence of an event is, let E be an event, then the probability of occurrence of E is designed as probability of E is equals to number of favorable outcomes upon में total number of outcomes. ठीक है. और किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 0 के बीच में रहती है, 0 और 1 के बीच में. 0 से कम नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, और ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती. किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल्स टू 1 होती है. बस एग्जाम्पल 1 पे आते हैं. अ कॉइन इज टोड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल. तो टेल की प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या हो जाएगी, 1/2. इस तरह से हमें सेकंड में हमें गिवन है, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 कॉइन्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स. बहुत दोनों के दोनों हेड्स आएंगे, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखो ये कि 1 ही तो है, 1/4. ठीक है, दोनों पे हेड्स आएंगे, टोटल नीचे 4 लिखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल 3. A die is thrown at random. Find the probability of getting 5 on the number less than 5. डाई में देखो नंबर लेस देन 5 का हमें बताना है ना. आपका गेटिंग का 5 आए, 5 आएगा, वो तो एक ही है, तो 1/6 हो जाएगी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है, अ बैग कंटेन्स 10 मार्बल्स, 4 वाइट, 3 रेड, 2 ब्लू एंड 1 ग्रीन. अ मार्बल इज टेकन आउट एट रैंडम. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल इज ऑफ रेड कलर. तो रेड कलर वाले बच्चों कितने हैं इसमें, 3 है, तो 3 अपॉन टोटल कितने, 10. सेम ऐसे ही 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शेफर्ड ऑफ 52 कार्ड. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एज 5.
तो बच्चों उसमें क्या लिखा होगा 5, तो 5 जिस पे लिखा होता है ऐसे 4 कार्ड्स होते हैं ना चारों कलर के, तो चारों जो है उसके किंग के भी, हार्ट के भी, डायमंड के भी, स्पेड के भी, क्लब के भी, तो 4 टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, तो 1/13 कैंसिल हो गए। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन, अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो बच्चों 1/2 होगी फर्स्ट का। सेकंड, while tossing 2 coins simultaneously, what are the possibility outcomes in a single throw of a 2 coins, find the probability of getting both tails, दोनों पे टेल आएगा, तो बच्चों दोनों पे टेल आएगा तो एक ही तो प्रोबेबिलिटी होगी, तो 1/4, क्योंकि या तो दोनों पे हेड आ सकता है या दोनों पे टेल आ सकता है, या टेल हेड या हेड टेल, दोनों पे टेल की तो एक ही होगी ना 4 में से। थर्ड क्वेश्चन है, डाई इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं बच्चे डाई में, एक तो होता है आपका 4 होता है और एक होता है आपका 6, ये कंपोजिट होते हैं, तो 2 अपॉन में हो जाएगा आपका 6, 1/3 आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एन 8 फेस्ड डाइस बीइंग नंबर्ड फ्रॉम 1 to 8 इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। 8 फेसेस वाला हमने ले लिया डाई, तो हमें बताना है कि वो नंबर बताना है जो डिविजिबल हो जाए 3 से, तो 3 से बच्चों 3 डिविजिबल हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 ही होंगे बस, तो 2/8, तो 1/4 आंसर हो जाएगा इसका। फिफ्थ पे आ जाते हैं, वन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मेरठ इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज ई, तो ई बच्चों कितने हैं, 2 हैं, तो 2 में से कोई भी हो सकते हैं, और टोटल मेरठ में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, सिक्स में आ जाते हैं, यू हैव ए स्पिनिंग अ व्हील, 3 ग्रीन सेक्टर्स, 1 ब्लू सेक्टर्स, 1 रेड सेक्टर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, तो ग्रीन वाले बच्चों कितने हैं, 3 हैं, 3 में से कोई भी हो सकता है, तो 3 अपॉन में टोटल कितने 5, इसका आंसर हो जाएगा 3 अपॉन में 5 सिक्स का। सेवन्थ में हमें गिवन है, इट इज़ नोन दैट अ बॉक्स ऑफ 20 पेन्स कंटेन्स 8 रेड पेन्स एंड रेस्ट आर ब्लैक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड पेन, तो रेड वाले कितने हैं, 8 हैं, 8/28 कर देंगे इसका आंसर, 8/28। ठीक है, फिर 8th में हमें क्या है, आउट ऑफ 21 बॉयज 15 गर्ल्स ऑफ द क्लास 1 स्टूडेंट इज टू बी सिलेक्टेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गर्ल, तो गर्ल बच्चों कितनी है 15 है, तो 1 अपॉन में ऐड करके लिख देंगे 36, तो 1/36 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर 9th में बच्चों बैक वाला क्वेश्चन है, सेम आपको खुद करना है। 10th में आ जाते हैं कि इंटीजर है, वो हमने चूज़ किया 100 में से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटीजर चूज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, तो 8 से कौन कौन से डिविजिबल होते हैं, तो 8 से लेके हम 10 तक 80 तक, फिर 88 हो जाएगा, फिर उसके बाद 96 हो जाएगा, तो बच्चों टोटल 12 हो जाएंगे। ठीक है, ट्वेल्व अपॉन में टोटल कितने 100, या कहाँ से आंसर आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 6 अपॉन में 50, तो आपका कैंसिल होकर आ जाएगा 3 अपॉन में 25। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं नेक्स्ट पे 13 पे। 12th क्वेश्चन जो है वो कार्ड वाला है, तो 13 मैं आपको करा देता हूँ, 12 सेम वैसे ही है। 10 कार्ड्स है जिसपे बच्चों ये नंबर लिखे हुए हैं, दे आर केप्ट इन द बॉक्स मिक्स थ्रोली, 1 कार्ड इज चोजन रैंडम, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 8, तो 8 तो बच्चों एक ही है, तो इसलिए 1/10 आंसर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, so in this way we have completed. At a glance you have to look at this is the short recap of this chapter, okay, at a glance, and some multiple choice questions also we have given. Mental maths topic is also given, all the questions you have to do, each and every question you have to practice so that your topic will become strong. Some activities also here you have to do this. So in this way we have completed our chapter students, so you have to do each and every questions yourself.